students, we have already started the chapter respiration. We studied about the RQ compensation point, and now we are going to start with the stepwise oxidation of food. So various steps that occurs during the respiration in aerobic as well as in anaerobic. Okay, that we will study in detail. So very first step that we are going to start, that is the glycolysis. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell, and glycolysis means when the glucose, there is the breakdown of glucose into the pyruvate, means conversion of glucose to the pyruvate, and this is also called as EMP pathway. Very important point, it is also called as EMP pathway. मतलब क्या हुआ? EMP means Embden Meyerhof Paranus pathway. Why it is called Embden Meyerhof Paranus pathway? Because of the contribution of these three scientists for the glycolysis. Okay, so let us start with the glycolysis. What the glycolysis is basically. So we have glucose. Glucose convert into glucose 6-phosphate. This is step is 1. First step, this is called phosphorylation, means glucose get phosphorylated to form glucose 6-phosphate, then it get converted into its isomeric form fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate, then it get converted into fructose 1,6-phosphate. Then it undergoes splitting. Are you getting my point? It undergoes splitting to form dihydroxy acetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde. Are you getting? These are the various steps which occur during the glycolysis. 3-phosphoglyceraldehyde get converted into 1,3-biphosphoglycerate. 1,3-biphosphoglycerate. This convert into 3-phosphoglycerate. Then it is further converted into its isomeric form, that is 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate, and then water is removed and it forms phosphoenol pyruvate, and that it converted, the phosphoenol pyruvate convert into pyruvate. ठीक है बेटा, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको इसी तरीके से लर्न करने हैं. समझ आ रही है बात? तो आपने यहां लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, this phase till here, when glucose convert into 3-phosphoglycerate, this is called as preparatory phase. Okay, this is called preparatory phase, and this is called as payoff phase. During the preparatory phase, the glucose convert into 3-phosphoglyceraldehyde, and during the payoff phase, the 3-phosphoglyceraldehyde convert into pyruvate. Preparatory phase में जहां जहां ये ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट हुआ, तो देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी. At first and the third step, the ATP break down into ADP and release the inorganic phosphate. However, at 6 and 9 step,
there is the synthesis of ATP. Are you getting my point? This you should keep in mind. Easy way to learn the glycolysis. आपने देखा फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP ब्रेकडाउन होता है किसमें? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जबकि सिक्स्थ और नाइन्थ स्टेप में ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन करते हैं और बनाता है क्या? ATP. समझ आ रही है आपको ये बात? फिफ्थ स्टेप में NAD कन्वर्ट इनटू NADH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव. Are you getting my point? Means reducing power is also generated here. Is it clear? Are you getting my point? So these are the steps in which we have studied. This is preparatory phase. This is payoff phase. And when we talk about the synthesis of ATP, at first and third step there is a synthesis, there is a breakdown of ATP, and at sixth and ninth step there is a synthesis of ATP. Okay, and at the eighth step there is the dehydration, release of water molecule. तो ये 4-5 बातें आपने इसमें पॉइंट्स याद रखने हैं. Let's have the discussion about the various enzyme and various steps. तो आपने यहाँ ग्लाइकोलिसिस लिखनी है, इस तरीके से बनाना है. फिर आपने क्या करना है, इन सारे स्टेप्स के नाम लिखने हैं और उन स्टेप्स में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है वो भी आपने मेंशन करना है. और क्या ध्यान देना है आपने कि कहाँ कहाँ एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, कहाँ कहाँ एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है. ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोरिलेशन. देखो बेटा यहाँ क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज में 6 पोजीशन पे 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6 लिखते हैं. तो 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हो रहा है. तो जब जब फॉस्फेट अटैच होता है ऑलवेज कीप इन माइंड एंजाइम जो यूज होता है दैट इज hexokinase. Okay, and the step is called as the phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट. अब क्योंकि फॉस्फेट में ऐड होना है तो फॉस्फेट कहाँ से आएगा? एटीपी के ब्रेकडाउन से. तो एटीपी क्या करेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो यही मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप पे एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक होगा और यही फॉस्फेट यूज होगी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया आपके पास? फॉस्फोरिलेशन. दूसरा स्टेप आपके पास होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. दोनों ही एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है. तो आइसोमरेज की प्रेजेंस में, आइसोमरेज एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. थर्ड स्टेप है जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, यानी कि एक फॉस्फेट का एडिशन और हो रहा है. अभी मैंने आपको बताया था जब जब फॉस्फेट का एडिशन होता है तो क्या होगा? काइनेज एंजाइम यूज होगा और एटीपी की ब्रेकडाउन होगी. क्यों? क्योंकि फॉस्फेट का ऐड हो रहा है यहाँ पे. देन फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की स्प्लिटिंग हो जाएगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग. इसमें क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मिलता है हमें. एंड दीज टू आर द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ईच अदर. जो ये स्प्लिटिंग हो रही है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं क्या? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एंड दीज टू आर आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ईच अदर. फिर अब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. यहाँ पे क्या होगा? 3 एंड फॉस्फोरिलेशन भी होगा. यहाँ पे क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, व्हाट विल हैपन हियर? that it will form NAD convert into NADH plus H positive in the presence of phosphoglyceraldehyde dehydrogenase enzyme, and it form 1,3 biphosphoglycerate. Then
now 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट विल गेट कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि एक फॉस्फेट निकल रहा है। अब एक फॉस्फेट जब रिलीज होगा तो उससे क्या बन जाएगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो 6th स्टेप में आप देखो यहाँ मैंने लिखा है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एक फॉस्फेट फ्री हो गया। कैसे, जब यहाँ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज। क्लियर। फिर आता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस, नाउ इट get convert into its isomeric form in the presence of enzyme mutase, and that is 2 phosphoglycerate. Then 2 phosphoglycerate after the dehydration, यहाँ देखो एक water molecule remove हो रहा है, in the presence of enzyme enolase and magnesium ion it convert into phosphoenol pyruvate. Is it clear कि हमारे पास क्या था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, तो फॉस्फेट कहाँ गया, बैक फ्रॉम द एटीपी। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, काइनेज। तो आपने देखा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज C6H12O6 कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। Are you getting my point? And there is the, now you can see here, this is the path which is followed by this 3 phosphoglyceraldehyde, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन भी तो रहता है। ये क्या है, इसी की आइसोमेरिक फॉर्म है। तो जो ये सब कुछ एक बार हुआ है, ये भी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी यही पाथ फॉलो करेगा, यानी कि ये एक एक बार नहीं हुआ, ये सब क्या हुआ, 2 बार, यानी कि 2 बार 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना और 2 ही मॉलिक्यूल हमें क्या मिलेंगे, पायरुवेट के मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के दौरान साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के क्रिएट करता है। इज इट क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं, जब आपने प्रिपरेटरी फेज पढ़ा तो वहां आपने देखा हमारे पास कितने एटीपी यूज हुए थे, ध्यान से देख के बताओ, 2, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे एटीपी ब्रेक डाउन हुआ था। समझ आई ये बात। तो कितने एटीपी यूज हुए, फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे एक एटीपी यूज हुआ, तो कितने एटीपी हो गए, 2 एटीपी। अब देखो एटीपी ये है यूज, ये थे यूज एटीपी, ठीक है। अब एटीपी सिंथेसाइज कितने हुए, अगर हम बात करें कितने एटीपी सिंथेसाइज हुए, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, 2, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस 2 बार रिपीट होगा, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो टोटल एटीपी सिंथेसाइज कितने हो गए, 4 एटीपी। समझ आया, 4 एटीपी बने ना, देखो 1 2 इसके लिए और 2 इसके पाथ के लिए, तो टोटल 4 एटीपी बन गए। 4 बने हैं, 2 खर्च हो चुके हैं एटीपी, तो टोटल नेट गेन कितना आ गया, ग्लाइकोलिसिस से हमें डायरेक्ट एटीपी कितने मिल रहे हैं, 2। ये बात आपको बाद में बैलेंस शीट बनाने में काम आएगी, इसलिए आपने बहुत ध्यान से देखना है हमें कितने एटीपी सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन से, सबस्ट्रेट से हमें मिल रहे हैं फॉस्फोरिलेशन से, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। देखो यहाँ ग्लूकोज था सबस्ट्रेट, इट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ 2 एटीपी, डायरेक्टली वी विल गेट 2 एटीपी, ठीक है। एक चीज आप और देखोगे, जब हमने 5th स्टेप किया था वहां NAD कन्वर्ट हो रहा था किसमें, NADH2 में, ठीक है। एक NADH2 3 एटीपी के बराबर है, और यहाँ कितने NADH2 हैं, अभी मैंने बताया था, एक ये रहा, एक इसके लिए बनेगा, तो टोटल 2 NADH2, एक NADH2 3 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर हुआ, 6 के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 6 एटीपी हमें मिल रहे हैं NADK से, तो टोटल एटीपी कितने हो गए, 6 एटीपी हमें कहां से मिले, NADH2 से। समझ आई बात, क्योंकि एक NADH किसके बराबर होता है, 3 एटीपी के। एक NADH कितने के बराबर है, 3 एटीपी के, तो 2 NADH होंगे तो कितने एटीपी बन जाएंगे, 6 एटीपी। तो अब ध्यान से सोच के बताओ, ग्लाइकोलिसिस में टोटल नेट गेन एटीपी का कितना है, 8। 2 तो हमें डायरेक्ट मिले थे, यहाँ देखो 2 एटीपी हमें डायरेक्ट मिले थे, ये रहे डायरेक्ट मिले, और 2 एटीपी 6 एटीपी हमें मिले NADH से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद नेट रिएक्शन अगर हम देखें तो आपके पास ग्लूकोज था, किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन गए। NAD किसमें कन्वर्ट हो गया, NADH में, और 2 एटीपी हमें डायरेक्ट मिले। देखो इस इक्वेशन से भी पता चल रहा है, 2 एटीपी हमें डायरेक्ट मिले,
अभी मैंने आपको बताया था। और हमें यहाँ क्या मिले, 2 NADH, और एक NADH किसके बराबर है, 3 ATP के, यानी कि 3 इंटू 2 6 ATP। 6 ATP ये रहे और 2 ATP ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 8 ATP। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Here you can see the total net gain during this is the net product we can say here we are getting 8 ATP। 2 ATP सीधा मिल रहे हैं, 6 ATP हमें NADH से मिल रहे हैं, तो this is called as a 8 ATP we will get at the end of this। okay? तो ये ध्यान रखना है आपने। अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरी बात EMP पाथवे कहा जाता है, तीसरी बात कि इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? और मतलब उसके बाद अगर ऑक्सीजन है देन द पायरुवेट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फर्दर प्रोसीड फॉर द Krebs साइकिल। ओके, एंड इफ इट इज नॉट देयर देन इट अंडरगो द एनारोबिक ब्रेकडाउन, वो भी हम करेंगे। तो आपको ये सारी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी ब्रेकडाउन हो रहा है, सिक्स्थ और नाइन्थ स्टेप में एटीपी बन रहा है, फिफ्थ स्टेप में NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, एट्थ स्टेप में वाटर रिलीज हो रहा है। ये 4-5 बातें याद रखनी है आपको, और लास्ट में आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर विद यू? हाँ जी बेटा, तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया और एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या बना था, दैट इज द पायरुवेट। अब जो पायरुवेट है, नाउ आई टोल्ड यू कि जो ग्लाइकोलिसिस है दैट इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इफ ऑक्सीजन इज देयर then that pyruvate that will enter in the mitochondria and it undergo the oxidative decarboxylation, means this pyruvate in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase and magnesium ion, it get converted into acetyl coenzyme A and NADH plus H positive and CO2 is released. The fifth step is called as decarboxylation. CO2 is released since 2 molecule of pyruvate were formed at the end of glycolysis। I told you कि ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें कितने मॉलिक्यूल मिले थे, पायरुवेट के 2, तो हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे एंड वी विल गेट द 2 CO2 and 2 NADH plus H positive, 2H positive। clear? This reaction now acetyl coenzyme A which is formed by the oxidative decarboxylation of pyruvate, means this simple step is called as the link reaction। why? Because it is the connecting link between glycolysis and Krebs cycle। देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है CO2 और वाटर में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। पर अब तक हमने क्या देखा, कितने एटीपी मिले हमें ग्लाइकोलिसिस से, डायरेक्ट एटीपी अगर हमने देखे तो 2, और अगर NADH से देखें तो 6 एटीपी मिले थे हमें। यहाँ अगर हम देखें तो डायरेक्ट एटीपी हमें इस स्टेप में कोई नहीं मिल रहा, लेकिन हमें क्या मिल रहे हैं, 2 NADH, यानी 6 एटीपी हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिला है, दिस विल एंटर इन द Krebs cycle and further processes occur। So we have the total 4 steps we will do। First is the glycolysis, second is the oxidative decarboxylation of the pyruvate and it generate acetyl coenzyme A। now this acetyl coenzyme A that will enter into the Krebs cycle। is it clear?